So in this kingdom Plantae, in the previous session, we had completed discussion about Bryophyta as well as Pteridophyta. Okay, so classification mein starting from cryptogams, the broad classification, that part of the lesson we have completed. Now we are left with phanerogams. Okay, so cryptogams and phanerogams, do you recollect the broad differences between them properly? क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स, क्या मेन डिफरेंसेस है दोनों के बीच में? क्रिप्टोगैम नो, उसमें फ्लावरिंग नहीं होता और सीड्स भी नहीं होते। तो ऑर्डर में बताना, फ्लावर, फ्रूट, सीड। हाँ, फ्लावर, सीड्स वो नहीं होता। राइट। और फेनेरोगैम्स एडवांस्ड है इनसे। Any other point? Phanerogams are seed producing plants. हाँ, सीड प्रोड्यूस। उनको स्पर्मेटोफाइट्स करके बोलते हैं, right? So the other main point was about the differences in the location of their reproductive organs. हाँ, फेनेरोगैम्स के बाहर होते हैं और क्रिप्टोगैम्स के हिडन होते हैं। Correct. हाँ, Here it is exposed, there it is hidden. Right. hidden. Okay. Sneha has to work on the vocabulary. Yes. Okay. ठीक है। एंड में मैं डिस्कस करता हूँ जो पेपर करेक्शन किया ना, यू सॉ दैट, वो भी बताता हूँ मैं, ठीक है? So under phanerogams, now you recollect the differences between both of them, ठीक है? So phanerogams में there are two main divisions. एक है division Gymnosperms and the other one is division Angiosperms. Two divisions under phanerogams, ठीक है? So talking about the Gymnosperms first. See the word Gymnosperm. Okay, इसको अगर हम split up करते हैं तो there are two words. Gymnos means naked, sperma means seed. Okay, so when you say naked seed, it means the seed is produced but without any covering over it. Normally हम किसी भी plant के seed को imagine करते हैं, consider mango seed for example या tomato seed, तो उसके ऊपर covering होता है उसका fruit. A mango seed is not directly attached on the plant. It is present in the fruit inside which the seed is located. Same way for plants like tomato, chiku, apple, any fruit you imagine. तो वो सारे angiosperms हो गए. But in the case of gymnosperm, the seeds are directly present on the plant. There is no production of fruits on it. That's the actual meaning of the word gymnosperm. Okay, so gymnosperms, when you say, they are evergreen. दूसरा इसका opposite meaning होता है deciduous. Okay, evergreen का मतलब है throughout the year there are green leaves on the plant. Deciduous means they will shed their leaves in the dry season. Okay, and next growing season में नए leaves आएंगे, उसको deciduous बोलते हैं. Okay, so most of them, almost all the gymnosperms are woody trees. Few of them are shrubs, but herbaceous gymnosperms mostly नहीं होते. There are shrubs or trees, and there are some of the tallest and the largest plants on the earth. I'll show you some examples now. Okay, so ये flowering plants का primitive group है, but they are not actual flowering plants because इनमें flowers नहीं बनते. Okay, and they are producing naked seeds. The seeds are not covered by a fruit, and fruit is nothing but developed from the ovary. Angiosperms में हम देखेंगे उसका detail. Okay, and there is no needless to say they are vascular plants. Okay, अभी टेरिडोफाइटा से हम देख रहे हैं कि they are all vascular plants over here. Xylem phloem दोनों है. Anatomy में हम देखेंगे कि what are tracheids, what are sieve cells. But remember this: टेरिडोफाइटा में भी xylem had tracheids. Gymnosperm xylem also has tracheids, and phloem is having sieve cells. Okay, you remember the difference between the functions of xylem and phloem? xylem root से लीव्स तक न्यूट्रिशन पहुंचाता है, फिर लीव्स फोटोसिंथेसिस नहीं न्यूट्रिशन नहीं, मतलब सॉइल के जो पानी अब्सॉर्ब करता है वो लीव्स तक पहुंचाता है. डिसॉल्व्ड मिनरल्स, तो उसको बोलते हैं सैप.
एंड फिर फ्लोएम लीफ से फोटोसिंथेसिस होता है, फिर फ्लोएम उसको हर जगह पहुंचाता है, मतलब प्लांट्स के हर पार्ट में। फोटोसिंथेसिस को नहीं, फोटोसिंथेसिस को नहीं, फोटोसिंथेसिस होने के बाद जो फूड बनता है। व्हाट इज द फूड? ग्लूकोज। करेक्ट, कार्बोहाइड्रेट्स। ग्लूकोज बनता है बट जो ट्रांसलोकेट करते हैं दैट इज मोस्टली सुक्रोज, ग्लूकोज को कन्वर्ट करके। ओके, गुड। सो ये जाइलम फ्लोएम का फंक्शन है। तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट जिम्नोस्पर्म्स, और भी फीचर्स हम देखेंगे अभी। देयर आर अबाउट 70 genera ऑफ जिम्नोस्पर्म्स एंड 1000 लिविंग स्पीशीज ऑफ जिम्नोस्पर्म इन द वर्ल्ड। So compared to Bryophyta, Pteridophyta, they are less in number. Okay, the number of species are less. Bryophyta में 25,000, Pteridophyta में 11,000. तो उसके सामने ये बहुत कम है, 1000 species है. But still they are some of the very magnificent creatures. India में there are about 16 genera and 53 species of gymnosperms. Okay. मिला था ना वो Yes. कौन सा मिला वो था? कौन सा ट्री था? सांता क्लॉज क्या क्रिसमस ट्री? अरे बाप रे, Santa Claus. नहीं, क्रिसमस ट्री। Christmas tree, correct, yes. So that Christmas tree is an example of a gymnosperm. तो उसका स्ट्रक्चर याद है? It was looking something like this, हाँ है ना? हाँ। और कौन सा जिम्नोस्पर्म मिला था हमें? और There was one more. It was planted in pots, and that's why we did not consider that in our data. So these gymnosperms, they are mostly tropical to temperate plants, and the other thing is that ये actually ज़्यादा करके cold regions में grow है. So tropical में distribution कम है. Temperate to alpine conditions, you will find more of these gymnosperms. Okay, जैसे gymnosperm बोलते हैं ना, तो you can recollect कि there are those needle shaped leaves. Okay, like the one in your that Christmas tree which you saw. वैसे leaves होंगे इसमें mostly. ठीक है? Let's see the characteristics. So here the plant body. Now we have been talking about alternation of generation. तो sporophyte, gametophyte करके bodies हमने बताया था, है ना? So in Bryophyta and in Pteridophyta, both of them you have seen that. Right? Same way, Gymnosperm में भी the sporophyte is a most dominant and a big generation. Gametophyte is a very reduced one. तो जो हम लोग ट्री देखते हैं जिम्नोस्पर्म का, that is a sporophyte, and it has got a very good root system, a huge trunk that is a stem, and there are leaves. And leaf organization is which one? banyan tree? नहीं, banyan tree भी नहीं आएगा. Okay, इसमें से को leaves कैसा होता है पता है? Needle shaped. Imagine that Christmas tree which you saw. पतले needle shaped. कितने पतले थे? किसके trunk? Christmas branch tree. में से। Yes, that is fine because that was a young one that we saw. But जो बड़े वाले होते हैं वो बड़े होते हैं. तो trunk का size as such doesn't matter, but the leaves are needle shaped. Okay, and generally ऐसा conifer type appearance रहता है उसका. Okay, so it has got proper root, stem and leaf organization. Okay, and root system जो होता है that is the tap root type. This also we are going to see in detail during morphology when we will learn. Okay, वो लेसन जब आएगा तो पूरा प्लांट्स का PhD हो जाएगा उसमें अच्छे से, फ्लावरिंग प्लांट्स का. Okay, so that time we'll see root system दो टाइप के होते हैं, एक है tap root system, the other one is fibrous root system. Okay, तो जिम्नोस्पर्म्स में tap root system. Yes. Okay, and sometimes in some plants, कुछ जिम्नोस्पर्म में examples हैं कि root system थोड़ा modified है. Here you can take a look at the example of a plant called cycas. Okay, एक जिम्नोस्पर्म है, they produce something called coralloid roots. Okay, cycas में normal tap roots है जमीन के अंदर, and other than that there are some roots which come from above the soil. उनको बोलते हैं coralloid root. I'll show you the photograph. Okay, see this. ये cycas plant है. ये देखा है कभी? It looks like a palm, but it is not a palm. छोटा palm की तरह दिखता है, but ये palm नहीं है. Gardens में बहुत commonly grow करता है.
एकदम ऐसा फाउंटेन टाइप लुक है ना उसका, तो इट इज ग्रोन इन द सेंटर ऑफ अ हाँ गार्डन, you know it has got ornamental look, but wild में ये cold regions में मिलेगा, mountain slopes में. That is cycas. Okay, this cycas plant produces, उसके बेस पे अगर देखेंगे ना या नीचे वाले पोर्शन पे, तो वहां पर इस तरह के रूट्स मिलेंगे, इनको बोलते हैं coralloid roots. Can you see the coral like structures? हाँ Okay, ये देख, ये cycas का normal root and this is the coralloid root. It looks like this. Okay, ये normally roots are under the ground, but coralloid roots will be appearing above the ground, negatively geotropic. Okay, these coralloid roots, they have a symbiotic association with blue-green algae. Okay, इनमें blue-green algae के साथ रहता है cyanobacteria. तो cyanobacteria यहाँ पर रहते हैं, they fix nitrogen for the plant, and in return, the coralloid root is providing them with the shelter. Okay, तो symbiotic association. दूसरा एग्जांपल है पाइनस, वेरी कॉमन जिम्नोस्पर्म्स है अपने पाइन ट्रीज. ऊपर हिल्स में, पहाड़ों में अगर जाते हैं, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, यू विल फाइंड लॉट ऑफ पाइन ट्रीज. बहुत सारे पाइन ट्रीज हैं, है ना, उसको पाइनस करके बॉटनिकल नेम है, जीनस है उसका. तो इनके जो रूट्स होते हैं पाइनस के, दे आल्सो शो एसोसिएशन विथ मेनी फंजाई. कि रूट्स के साथ फंगल हाइफे का नेटवर्क बन जाएगा. That association is called mycorrhiza. Myco मतलब फंगस, rhiza मतलब roots. So that is mycorrhiza. ये पाइन ट्रीज के साथ कॉमनली मिल जाते हैं, तो इनका बहुत बेनिफिट होता है सॉइल को. ओके, तो प्लांट्स को क्या फायदा होता है कि सरफेस एरिया बढ़ जाता है एब्जॉर्प्शन के लिए, एंड अ फंजाई इन रिटर्न इज गेटिंग बेनिफिटेड बाय गेटिंग द शेल्टर as well as getting the nutrients from the roots of the plants. So that mycorrhiza is also a symbiotic association. तो जिम्नोस्पर्म्स का इस तरह का एसोसिएशन भी देखा गया. ओके, तो ये दो एग्जांपल यहाँ याद रखना है. एक है साइकस having coralloid roots and the other one is pinus having mycorrhiza. ठीक है. Then next is talking about the stem of the gymnosperms. Mostly erect stems होते हैं. Okay, in the case of angiosperm, the stems can have very cross-shaped structures and all. जैसे अपने गुलमोहर या रेन ट्री वगैरह देखो, एकदम इरेक्ट स्टेम नहीं होते. जिम्नोस्पर्म्स हैव अ वेरी इरेक्ट स्टेम. ऑफ कोर्स एरियल, अंडरग्राउंड तो नहीं रहेगा. ओके, वेरी सॉलिड, कंपैक्ट एंड अ सिलिंड्रिकल स्टेम. ओके, एंड इफ यू रिमेंबर यस्टरडे आई हैड मेंशन्ड अबाउट सेकेंडरी ग्रोथ, जो टेरिडोफाइटा में एब्सेंट है. व्हाई डज सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस? कैम्बियम कुछ करके था. हाँ, वो कैम्बियम टिश्यू है जिसके वजह से होता है सेकेंडरी ग्रोथ. हाँ, उसमें नहीं था इसलिए नहीं हुआ. हाँ, तो हियर देयर इज अ कैम्बियम टिश्यू प्रेजेंट नाउ, तो एडवांस फीचर हो गया compared to pteridophytes, right? So why does the secondary growth take place? फ्लावरिंग के लिए. No, इसका फ्लावरिंग से कोई मतलब नहीं है. Imagine a pteridophyte like say Nephrolepis and imagine a gymnosperm, Cycas and Pinus that you saw. हाँ, हाइट के लिए. हाइट नहीं, हाइट के साथ साथ क्या? ग्रोथ. सेकेंडरी ग्रोथ, गर्थ ऑफ द स्टेम. हाँ, है ना, स्टेम का डायमीटर भी बढ़ेगा ना, इन प्रोपोर्शन. Okay, so that secondary growth is because it has to increase the girth of the stem so that the plant can support itself well. ये उसका रीजन है. Okay, and pteridophyta में वो नहीं होता है because there is no cambium tissue present. ठीक है. So it's like under gymnosperms there are three main groups. एक है cycads, दूसरा है conifers, and third one is cnitopsids. ऐसे करके तीन नाम है. ठीक है. मैक्सिमम स्पीशीज बिलोंग टू कोनिफर्स. ओके, साइकैड इज द प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म, कोनिफर्स आर द मोस्ट
dominant ones, and Nitopsids are the most advanced gymnosperm. तो जिम्नोस्पर्म्स में जो साइकैड्स होते हैं, जैसे साइकस हमने एग्जांपल देखा, इट वाज लुकिंग लाइक अ स्मॉल पाम ट्री, तो उसमें ब्रांचिंग नहीं होती, एक स्टेम है और ऊपर डायरेक्टली लीव्स है फाउंटेन की तरह। बट कोनिफर्स में देयर इज ब्रांचिंग सी, ठीक है, मेन ट्रंक जो है वो ब्रांच रहेगा कोनिफर्स में। ओके, ये देखो, ये क्या है, ये साइकस प्लांट है और उसका ये मेल कोन, इट्स अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द साइकस। ओके, कितना बड़ा है देखने, राइट, उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल, ठीक है। एंड दिस वन इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ साइकस, इसको बोलते हैं मेगास्पोरोफिल। नाउ कंपेयर दिस विद द टेरिडोफाइट्स। एडियमटम के लीव्स में वो ब्राउन कलर का बॉर्डर दिखा था, हाँ, अब वो कहाँ और ये कहाँ, दोनों भी स्पोरेंजियम प्रोड्यूस करते हैं, दोनों के अंदर स्पोर्स बनते हैं, बट सी द एडवांसमेंट नाउ, गेटिंग इट। एट द सेम टाइम लीव्स को देखना, लीव्स आर डाइमॉर्फिक, टू टाइप्स ऑफ लीव्स, हाँ, डाइमॉर्फिक मतलब एक होता है फोलिएज लीव्स, दूसरा होता है स्केल लीव्स। स्केल लीव्स जो होते हैं, दे आर ऑन द ट्रंक एंड दे आर वेरी रेड्यूस्ड, दे आर स्मॉल इन साइज एंड दे आर ब्राउन इन कलर, ओके, जो ट्रंक के ऊपर होते हैं। एंड जो फोलिएज लीव्स है वो ये ग्रीन वाले लीव्स है जो दिख रहे हैं, द एक्चुअल ग्रीन लीव्स। यू कैन सी दे आर सिंपल नीडल लाइक, कैन यू सी दैट, है ना, पिनेटली कंपाउंड बोलते हैं, इसका मीनिंग हम मॉर्फोलॉजी में देखेंगे। ओके, एंड स्केल लीव्स जो होते हैं, दे आर स्मॉल एंड ब्राउनिश इन कलर, and these two structures which you are seeing, they are the, this is the microsporophyll or the male cone, this is the megasporophyll or the female cone। माइक्रोस्पोरोफिल में बनते होते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया which produce the microspores, and megasporophyll में होते हैं megasporangium in which the egg cell is present। तो मेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स। ओके, ये साइकस में ऐसा दिखता है, हर एक जिम्नोस्पर्म में अलग अलग टाइप के कोन्स प्रोड्यूस होते हैं। तो दैट्स व्हाट आई वाज रिमाइंडिंग यू, थूजा में वो ब्राउन कलर के कोन्स देखे थे, याद है, मोर पंख, एमआईडीसी रीजन में वी हैड सीन दैट, जस्ट रिकलेक्ट, फोटो देखना बाद में, हाँ, ठीक है, बट अंडरस्टूड द मीनिंग। आई विल शो यू वन हाँ, मोर थिंग, ये देख, हाँ, आपके घर पे था। ओके, दिस इज अ पाइनस कोन, ये मैंने इसको हाँ, रिजर्व करके रखा है, देखना, दिस इज मेनी मेनी इयर्स ओल्ड, आई थिंक ये दिखाया था ना मैंने क्लासेस में, दिखाया था आपने, क्लासेस में लाया था। करेक्ट, यस, 9th स्टैंडर्ड में ना, प्लांट हाँ, क्लासिफिकेशन पढ़ाते वक्त, करेक्ट। सो दैट्स द पाइन कोन। ओके, नाउ कमिंग टू द एग्जांपल्स, जनरल फीचर्स समझ में आ गया जिम्नोस्पर्म्स का, ठीक है। सो दिस वन इज पाइनस, ये देखना उसके कोन्स, इस तरह का ट्री हमने देखा था, डू यू रिमेम्बर? हाँ, उसमें ब्राउन ब्राउन कुछ हाँ, था। हाँ, वो, हाँ, पाइन ट्री। ओके, पाइनस इज द जीनस, एंड पाइनस के बहुत स्पीशीज, पाइनस रॉक्सबर्ग है, पाइनस केसिया, ओके, पाइनस जेरार्डियाना, अलग अलग स्पीशीज है, ठीक है। ये है सेड्रस, सेड्रस का कॉमन नेम है देवदार, देवदार का ट्री, हाँ, ये हाई एल्टीट्यूड वो रीजन, भी हाई, हाई ज्योग्राफी में था। एग्जैक्टली, यस, हाँ, देवदार करेक्ट, ट्री। करेक्ट, ओके, यही है वो देवदार ट्री। ओके, तो इसके कोन्स देखना कितने अलग दिखते हैं, इसलिए जिम्नोस्पर्म में प्रोड्यूस होते हैं उनको कोन्स बोलते हैं, दे आर नॉट फ्लावर्स। ओके, सी दिस इज एन एडवांस्ड जिम्नोस्पर्म, इसका नाम है निटम, जी साइलेंट, निटम। ये एक्चुअली देखने पर एकदम एंजियोस्पर्म लगेगा, बिकॉज यू कैन सी देयर आर नो नीडल शेप लीव्स, कैन हाँ, यू सी दैट, नहीं, बट इन निटम में ऐसा एग्जांपल है, ये एकदम एंजियोस्पर्म्स के नजदीक है इवोल्यूशन में। ओके, दिस वन इज पूजा, डू यू रिमेंबर दैट? हाँ,
हमने देखा था, मोर देखा पंख, था देखा था। है ना, हाँ दैट ये इज देखा था। थूजा। अभी इसका दूसरा नाम है, इट इज कॉल्ड बायोटा। ओके, पहले नाम थूजा था, नाउ इट इज बायोटा, यू कैन रिमेम्बर थूजा, ठीक है। दिस वन इज जूनिपर, पेंसिल सेडार भी बोलते हैं इसको, इसके लकड़ी से पेंसिल्स भी बनाए जाते हैं। ओके, जूनिपेरस करके नाम है, जूनिपर। ओके, एंड दिस वन इज एन एग्जांपल कॉल्ड, ये कौन सा है, ये एरुकैरिया। नारियल जैसे लगे हुए देखना। लीची जैसे लगे। अरे वाह, दिस इज योर क्रिसमस ट्री, ओके। अरोकैरिया। ओके, तो हमने कौन से एग्जांपल देखा है, एक तो साइकस, देन पाइनस, थूजा, सेड्रस, ओके, अरोकैरिया, निटम, जूनिपर, ठीक है। और भी देखेंगे एग्जांपल, देयर आर मेनी इंटरेस्टिंग जिम्नोस्पर्म्स, ये देख, कैन यू सी द साइज ऑफ द ट्री, ये क्या है? एक ट्री है ये, ओके। जस्ट वन ट्री, सी दिस, घर जैसा लग रहा है। यस, इसका नाम है टैक्सोडियम म्यूक्रोनेटम, बोलो, टैक्सोडियम म्यूक्रोनेटम। यस, इसका कॉमन नेम है यू प्लांट। ओके, ये बहुत मोटा है, सी द गर्थ, इसका पूरा अगर गर्थ देखेंगे, इट इज अबाउट 125 फीट। इट्स लाइक, अगर यहाँ खड़ी रहकर यू स्टार्ट वॉकिंग, पूरा सर्कल लेकर यहाँ पे आ जाओ, यू आर वॉकिंग 125 फीट, दैट इज द गर्थ, सी हाउ नाइसली इट इज, मोटा है, छोटा है, नाटा है। Okay, that is Taxodium mucronatum, very interesting, that's why it becomes a tourist spot, the public देख रहे हैं। ऐसे trees देखने का मजा ही अलग है, and it has to be conserved, है ना, nobody should even think about destroying such a tree, correct, ये U plant, so gymnosperms में इसका जो लकड़ी होता है ना, timber, they are very good quality timbers, मजबूत लकड़ी होती है, almost all the conifers have very good wood, okay, see this, imagine the size of the trunk, ओके, इसका नाम है सेक्वाया सेम्परवीरेंस, बोल, सेक्वाया सेम्परवीरेंस। हाँ। ये देख, यू आर ऑलमोस्ट समवॉट लाइक दिस, इमेजिन द ट्रंक नाउ, ओके, ये ये सबसे पैनोरामिक, ओल्डेस्ट ट्री है ना? ओल्डेस्ट, ये भी ओल्डेस्ट नहीं, इससे भी ओल्डेस्ट है एक्चुअली, ये जो ट्री है, दिस इज अराउंड से 3500 to 5000 ईयर्स ओल्ड, वर्ल्ड का ओल्डेस्ट ट्री जो रिपोर्टेड है, दैट इज समथिंग कॉल्ड ब्रिसलकोन पाइन, वो भी जिम्नोस्पर्म, उसका एज बोला गया समवेयर अराउंड 7000 ईयर्स ओल्ड, इमेजिन, ओके, ये इतना बड़ा है, ये पैनोरामिक व्यू देखना इसका, यू कैन इमेजिन कैलिफोर्निया के रेन फॉरेस्ट में मिलेगा ये, जाइंट रेडवुड बोलते हैं इसको, ओके, ह्यूज जाइगेंटिक ट्रीज, वेरी टॉल एंड वेरी ओल्ड, यू कैन इमेजिन यहाँ देखना ट्रंक में टनल बना दी, ओके, बट इसका जो सीड होता है ना, इट इज हार्डली 1/900 ऑफ अ ग्राम, इतना छोटा सीड होता है इसका, okay, they are very very interesting plants and they need to be conserved, ये एक्चुअली बहुत restricted एरिया में कम नंबर में मिलते हैं, एंड इसमें भी कुछ ऐसे बहुत बड़े बड़े जाइंट्स हैं जिनको एक्चुअली नाम दे दिया, द जनरल शर्मन, द प्रेसिडेंट, ऐसे नाम दिया ट्रीज को, सो दे आर प्रोटेक्टेड एंड दे आर वेरी गुड इंटरेस्टिंग टूरिस्ट स्पॉट्स, ओके, तो उसको बोलते हैं जाइंट रेडवुड, दैट इज ऑल्सो अ जिम्नोस्पर्म, तो जस्ट इमेजिन कि एवोल्यूशन में कितने सही तरीके से डेवलप हुए, and the plants are still surviving, ये रियल में देखने मिला तो क्या मजा आ जाएगा, करेक्ट, सो जिम्नोस्पर्म्स में इस तरह के मैग्निफिसेंट क्रीचर्स होते हैं, स्पेशली कोनिफर्स में, ओके, ये देखना, ये इसका कंपैरिजन है, एक बुक था मेरे पास, उसी का फोटो लेके रखा है, दिस जाइंट मैच्योर रेडवुड, उसका कंपैरिजन किया है बाकी चीजों के साथ, दिस इज अ फुल ग्रोन मैच्योर रेडवुड,
You can see a missile in front of it, a rocket, then aeroplane. You can see an elephant and एक छोटा सा इंसान खड़ा है देखो. You can imagine how huge the tree must be. Correct? 83 meters high. And the base of the trunk is around 11 meters. Cannot imagine. है ना? यहाँ पे लिखा है देखना. You can hide a big lorry behind this trunk. नजर नहीं आए. मतलब ट्रंक अपना ट्रक. ओके. बड़ा सा ट्रक. इसका वजन होगा 2000 टन. 1 ton is 1000 kilogram. So 2000 ton means you can imagine how many kilograms. Correct? And it is around 3500 years old. And इसके ट्रंक का जो bark है, that bark itself is around 50 centimeter thick. And it is nicely soft. Now you can punch the bark, you won't feel the pain. Nice soft and cushioning bark. And इसके seed का weight देखना 1/250th of a gram. इतने tiny seed में से इतना huge creature. It is possible. Nature can have its own wonders. Correct? अच्छा है ना tree? Giant redwood, है ना? ये देखना. Another interesting fact. This is a gymnosperm which is supposed to be the smallest. इसका नाम है Zamia pygmea. बोल. Zamia pygmea. Okay, smallest gymnosperm. इसलिए नाम में pygmy है. ये मतलब छोटा. Right? Then see this. This is a tree called Ginkgo biloba. Ginkgo biloba. Yes. ये जिम्नोस्पर्म ट्री है जिसको बोलते हैं लिविंग फॉसिल. इनके फॉसिल्स भी मिलते रहे. Yes. इसका लिविंग स्पेसिमेन भी मिलता है, फॉसिल्स भी मिलते हैं. इसका लीफ एकदम टिपिकल है. वो चाइनीज हैंड फैन आता पता है, हवाई वाला, चाइना या जापान में मिलता है. ये वहां पे मिलते हैं. उसका लीव्स भी वैसी ही शेप, एकदम टिपिकल. हाँ. तो वाइल्ड में ये प्लांट बहुत कम ग्रो होते हैं, बट यू गेट इट. मैंने ये ट्री देखा है सामने से. व्हेन हम कॉलेज एक्सकर्शन गए थे टू मसूरी, उत्तराखंड में. तो मसूरी से ऊंचाई पे एक जगह है अपना, देयर वाज दिस प्लेस कॉल्ड कंपनी गार्डन एट मसूरी. उधर ऊंचाई में ये ट्री ग्रो किया हुआ है. सामने से ये ट्री देखा है मैंने. एंड इसके जो ड्राई लीव्स गिर जाते हैं ना एकदम येलोइश होने के बाद, दिस ग्रीन हाउस एंड नर्सरी पीपल दे यूज दोस ड्राई लीव्स फॉर प्लेसिंग इन द पॉट्स. जब प्लांट्स ग्रो करते हैं उसमें मल्चिंग वगैरह करते हैं उससे. बट लुक्स वेरी मैग्निफिसेंट. ठीक है, ऐसे भी ट्रीज हैं. राइट? ये देखना, इस जिम्नोस्पर्म्स के बहुत यूजेस है. ओके, जैसे पाइन ट्री. पाइन जैसे जो कोनिफरस होते हैं ना, उनके ट्रंक में, उनके स्टेम में देयर आर रेजिन कैनाल्स प्रेजेंट. दे प्रोड्यूस गुड क्वालिटी ऑफ रेजिन. तो वो रेजिन हमारे लिए बहुत यूजफुल, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज में. सिमिलरली रेजिन में से बनता है टर्पेंटाइन ऑयल, दैट इज ऑल्सो वेरी यूजफुल. ओके, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं. पाइनस के जो सीड्स हैं उसको बोलते हैं चिलगोजा. They are also very nutritious. It has got good oil content, lot of vitamins, minerals, सब है. तो ये seeds भी वहाँ local people consume करते हैं. उसको चिलगोजा बोलते हैं. And no doubt, as I said, very good quality timber from the conifers. Okay, तो जहाँ जहाँ pine trees वगैरह मिलते हैं उसके लकड़ी बहुत यूज करते लोग. Okay, understood this? Gymnosperm समझा अच्छी तरह से? ठीक है. So till here, whatever we have discussed in the lesson, based on that, ready some questions. आज क्वेश्चन के आंसर बहुत देने स्नेह को. ठीक है. ओके, चलो फर्स्ट क्वेश्चन. The tallest, नहीं तू रीड कर और आंसर भी दो. The tallest and the largest plant in the world mostly belong to gymnosperms. Correct. Next. The vascular cryptogams are the
Pteridophytes. Correct. Very good. Then The xylem and phloem tissue first developed in Pteridophytes. very good. Coralloid roots are found in Coralloid. Coralloid roots are found in cycas. क्या बात है? Spores are produced in the capsule of a sporophyte in mosses. Very good. You saw that, no? Photo you sent me later. Photo. You know, nice sporophytes were seen. Next. Like structure in a thallus are called as rhizoids. Very good. The most primitive and evolutionary earliest group of plants. Evolutionarily.